What was Baldeo's ex like? Baldeo ਦੀ ਜਿਹੜੀ ex ਸੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਸੀ? Answer is Baldeo's ex looked very fragile, but it was quite deadly when used. ਜਿਹੜੀ ਬਲਦੇਓ ਦੀ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ ਐਕਸ ਸੀ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਬਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। Question 6. How did Baldeo know that a tiger was nearby and later it had sprung into the cutting? और बलदेओ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਾਈਗਰ ਹੈਗਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਸੀ ਉਹ ਤੰਗ ਰਸਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਲਦੇਓ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਟਾਈਗਰ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਬਲਦੇਓ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? Answer is Baldeo heard a low grunt from the top of the cutting. ਬਲਦੇਓ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਚੱਟਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੰਗ ਰਸਤਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹਦੇ ਗੁਰਾਨ ਦੀ ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਗੁਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। He at once understood that a tiger was nearby. ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਟਾਈਗਰ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਟਾਈਗਰ ਕੁਡ ਐਮਿਟ ਸੱਚ ਅ ਸਾਊਂਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਆ ਉਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਹੀ ਹਰਡ ਅ ਥੰਪ ਐਂਡ ਦ ਰੈਟਲ ਆਫ ਸਮਾਲ ਸਟੋਨਸ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨੇ ਸੁਣੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਖੜਖੜਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣੀ। It made him sure that the tiger had sprung into the cutting. और इस तो श्योर हो गया कि जो टाइगर आ वो जो चट्टाना में तंग रस्ता बनया होया उत्थों छलांग मार के आ गया। Next is question number 7. Why did Baldeo not run away from the tiger? बलदेओ जिहड़ा सी वो टाइगर नूं देख के उत्थों क्यों नहीं भज्जिया? Answer is बलदेओ डिड नॉट रन अवे फ्रॉम द टाइगर। बलदेओ जिहड़ा सी वो टाइगर तो दूर नहीं भज्जिया बिकॉज देयर वॉज नो शैल्टर फॉर हिम, क्योंकि उन्होंने लुकण वास्ते उत्थे कोई भी जगह नहीं सी। एट दैट टाइम ही वॉज स्टैंडिंग इन द कटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टनल। उस टाइम ते वो कित्थे खड़ा सी? चट्टाना दे विच जिहड़ा तंग रस्ता बनिया सी, जिहड़ा सुरंग दे विच एंटर वाला रस्ता सी, उत्थे खड़ा सी। एंड द टाइगर वॉज कमिंग रैपिडली टूवर्ड्स हिम फ्रॉम द ऑपोजिट साइड। और जिहड़ा टाइगर सी बिल्कुल ही उहदे ऑपोजिट साइड बहुत तेज़ी नाल उहदे वल वध रहा सी। फ्लाइट वॉज इंपॉसिबल इन सच अ सिचुएशन। और इदां दी स्थिति दे विच इदां दी कंडीशन दे विच उत्थों भजना नामुमकिन सी। क्वेश्चन 8. डिस्क्राइब द फाइट बिटवीन बलदेओ एंड द टाइगर। डिस्क्राइब करनी है दोनों दी फाइट नूं। आंसर इज A tiger attacked Baldeo when he went to the signal post to check the light. ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਲਦੇਓ ਸੀ ਉਹ ਸਿਗਨਲ ਪੋਸਟ ਤੇ ਲਾਈਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਟਾਈਗਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਟੂ ਸੇਵ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਫਰੋਮ ਦ ਟਾਈਗਰਸ ਪੋ, ਟਾਈਗਰ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬਲਦੇਓ ਜੰਪਡ ਟੂ ਵਨ ਸਾਈਡ ਐਂਡ ਹਿਟਸ ਦ ਟਾਈਗਰ ਵਿਦ ਹਿਸ ਐਕਸ। बलदेओ ने एक साइड ते जंप किया, छलांग लगाई एंड हिट द टाइगर विद हिज एक्स, ते उस टाइगर नूं अपनी कुहाड़ी दे नाल वार किया टाइगर दे उपर। द टाइगर रोअर्ड लाउडली विद पेन। टाइगर जिहड़ा सी बहुत उच्ची आवाज़ दे विच क्योंकि उहदे एक्स लगी सी, कुहाड़ी उहदे लगी सी, इसलिए उहदे इन्ने ज़्यादा दर्द होया वो जोर नाल दहाड़िया। He sprang upon Baldeo and tore him to pieces. ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਲਦੇਓ ਦੇ ਉੱਪਰ ਝਪਟ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਲਦੇਓ हैड hit the tiger so badly. ਬਲਦੇਓ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। and that the tiger couldn't get out of the way when the train arrived there. Means ਬਲਦੇਓ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਗਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। मीनस ट्रेन आ रही सी, ट्रेन पहुँच रही सी, बट उहदे च इन्नी ताकत नहीं सी टाइगर च रही कि वो उत्थों हिल सके। दस ही टू वॉज किल्ड इवेंचुअली, तो इस करके वो भी आखिरकार मर गया। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 9. हाउ डिड द टाइगर डाई? टाइगर किवें मरिया? आंसर इज द टाइगर वॉज बैडली वाउंडेड ड्यूरिंग हिज
एनकाउंटर विद बलदेओ एट द सिग्नल पोस्ट। जिहड़ा टाइगर सी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया सी जदों ओहदी बलदेओ दे नाल झड़प हुई सी सिग्नल पोस्ट ते। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टाइगर जिहड़ा सी बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया। बलदेओज एक्स हैड गॉट स्टक इन हिज बोन। बलदेओ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸ ਸੀ ਕੁਹਾੜੀ ਸੀ ਉਹ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਈ ਸੀ। आफ्टर किलिंग बलदेओ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ द टाइगर सैट डाउन ऑन द ट्रैक रोरिंग विद पेन एंड लिकिंग हिज वाउंड। ਜਿਹੜਾ टाइगर ਸੀ ਉਹ रेलवे ट्रैक के ਉੱਪਰ बैठ गया और जोर जोर ਦੀ ਦਹਾੜਿਆ। पेन ਉਹਦੀ दर्द हो रही सी, दर्द ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਹਾੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਵਾउंड ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਲਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ही डिडंट नोटिस दैट द ट्रेन वॉज कमिंग। और वो इन्ना ज़्यादा पेन दे विच सी कि उन्होंने पता ही नहीं लग्या कि ट्रेन कदों आ रही है। बट वैन ही रियलाइज्ड इट, पर जदों उन्हें ये महसूस किया उन्होंने पता लग्या इट वॉज टू लेट, बहुत देर हो चुकी सी। ही कुडंट गैट आउट ऑफ द वे इमीडिएटली। वो उस टाइम फटाफट उतों बाहर नहीं निकल सकिया। एंड वॉज कट इन हाफ बाय इंजन, तो इंजन के द्वारा वो 2 हिस्सों के विच टुकड़े कर दिता गया। So last short question is question number 10. How did his father's death affect Tembu? ਟੈਂਬੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨੇ ਟੈਂਬੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇਫੈਕਟ ਕੀਤਾ? ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਟੈਂਬੂ ਵਾਜ਼ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਗ੍ਰੀਫ। ਟੈਂਬੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ ਓਵਰ ਹਿਜ਼ ਫਾਦਰਸ ਡੈਥ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਬਟ ਹੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਅਲਾਓ ਗ੍ਰੀਫ ਟੂ ਐਮੈਸਕੂਲੇਟ ਹਿਮ, बट उन्हें अपने दुख ਨੂੰ ਇੰਨੀ इजाज़त नहीं दी कि वह कमज़ोर पै सके। ही डिसाइडेड टू फेस लाइफ ब्रेवली, उन्हें यही फैसला लिया कि वह अपनी ज़िंदगी का बहादुरी नाल मुकाबला करेगा। ऑल द रिस्पोंसिबिलिटी ऑफ द फैमिली हैड नाउ फॉलन ऑन हिम, हुण उहदे परिवार की सारी जिम्मेवारी उहदे उपर आ चुकी सी। सो ही डिसाइडेड टू वर्क इन हिज फादरस प्लेस, इसलिए उन्हें फैसला किया कि वह अपने पिता की जगह पर काम करेगा। एंड 3 नाइट्स लेटर, ते 3 रातां बाद ही वॉज एट द कटिंग, वो जो तंग रस्ता सी उत्थे चला गया। लाइटिंग द सिग्नल लैंप फॉर द ओवरलैंड मेल, तो मेल वास्ते उन्हें जड़ा सिग्नल लैंप सी उन्हें चलाया। सो दीज आर शॉर्ट क्वेश्चंस, लर्न एंड राइट दीज शॉर्ट क्वेश्चंस 5 to 10।